Welcome back, students. Question number 3, exercise 2.3, class 7th, chapter fractions and decimal. Now question is multiply the following fractions. What we have to do? We have to multiply the following fraction. So students, look carefully. This is 2 by 5 and this is mixed fraction. And I know how to solve the mixed fraction. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्स्ट 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21 बाय 4. तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करूँगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो दिस बिकम्स 2 by 5 इंटू 21 by 4. नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? आई हैव टू सी दैट वेदर द टर्म्स आर कैंसल्ड और नॉट. दैट मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. This become 21 upon 5 2s are 10. Now this is improper fraction because the numerator is greater than denominator. That means it can be converted into mixed fraction. आपको मैंने सिखाया हुआ है कैसे convert करते हैं. This is 21. न्यूमरेटर को इधर रखिए, डिविडेंड को 10 से डिवाइड करिए. 10 2s are 20 और 1. तो फॉर्मूला क्या है? Q R D. Quotient is 2, remainder is 1 and divisor is 10. So answer is 2 1 by 10. Now moving towards the second part. This is again mixed fraction. I have to convert it into improper fraction. कैसे करेंगे? Multiply करिए. 6 5 are 30. 30 plus 2. 32 upon 5 into 7 by 9. Check whether terms are cancelling or not. कुछ भी cancel नहीं हो रहा है. Multiply कर देते हैं. 7 2s are 14 का 1. 7 3s are 21. 22 upon 9 5s are 45. Okay. Now अब हम इसको क्या करेंगे? Divide करेंगे. दिस इज 224 45. तो ये कितना आ जाएगा? इसको 5 से चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 से. 4 5 ज़ा 20 का 2, 4 4 ज़ा 16, 17 18. दिस इज 4 और ये आ गया 0. 44 QRD इट्स क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन 45. 44 अपॉन 45. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 3 by 2 into, again this is mixed fraction, we have to convert it into improper fraction. 5 3s are 15. 15 plus 1 is 16 upon 3. 3 और 3 cancel हो गए. 2 1s are 2, 2 8s are 16. So answer is 8. Hope so ये parts आपको clear हो गए होंगे. Moving towards the next part, that is the fourth part. We have fourth part is 5 by 6. 5 by 6 into 2 3 by 7. Now fifth part is 3 2 by 5 into 4 by 7. Sixth part is 2 3 by 5 into 3. Now this is 5 by 6 into 2 7s are 14. 14 plus 3 is 17 upon 7. ये आ गया. हमने क्या किया? दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन. हमने इसको कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 5 by 6, 2 7s are 14, 14 plus 3 17 by 7. कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा 85 अपॉन 42. अगेन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको करेंगे हम डिवाइड. 85 को यहाँ पे और 42 को इधर. तो 2 से करेंगे तो 84 1. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा क्वोशिएंट रिमाइंडर एंड दिस इज 42. 2 1 by 42. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ पार्ट. दिस इज अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू improper fraction. 3 5s are 15. 15 plus 2 is 17 upon 5 into 4 by 7. कुछ कैंसिल होता नजर नहीं आ रहा है. मल्टीप्लाई कर देंगे. 68 अपॉन 35. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड कर लीजिए और कन्वर्ट कर लीजिए. 68 आ गया इधर, 35 इधर आ गया. ये आ जाएगा तो 1 से ही जाएगा. ठीक है, तो 35. तो ये आ गया 33. 1 33 by 35. ठीक है. नाउ दिस इज अगेन दिस इज 135 33 by 30. Now 2 5s are 10. 10 plus 3 13 by 5 into 3. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 13 3s are 13 9. 5 1s are 5. अब इसको मैं लिख देती हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. कितना आ जाएगा? 5 7s are 35. 4 by 5.
ठीक है. So student, I think hope so this question is clear to you. Now moving towards the question number 4. Now students, moving towards the question number 4. Question number 4 is, which is greater? Here we have two parts, part number 1, part number 2. Look carefully. This is 2 by 7 of 3 by 4 and this is 3 by 5 of 5 by 8. That means this is the one part and this is another part. We have to tell which one is greater. For this we have to solve this part and this part separately and then see which one is greater. Now 2 by 7 of meaning multiply 3 by 4. Now इसको solve करेंगे, कुछ भी cancel हो रहा है. Yes, 2 1 2, 2 2 4. Now 3 1 3, 7 2 14. इसका आंसर हमें क्या मिल गया? 3 by 14. Now this is और में आ जाइए 3 by 5. ऑफ की जगह मल्टीप्लाई. whenever you saw of meaning multiply. 5 से 5 cancel. This become 3 by 8. Now 3 by 14 and 3 by 8. Now we have to convert it into like fraction. तो like fraction में क्या है? denominator same करना. Now this is the 14 and this is 8. तो हम क्या करेंगे? denominator same करने के लिए LCM लेंगे 14 और 8 का. निकाल लीजिए. 2 7 14, 2 4 8, 2 7 14 और 4 4 16. 56 आ गया. Now we have to make 56 इसको फॉर्म करना है. दिस इसमें 14 ये आ जाएगा हमारे पास. 14 56 आ गया LCM. Now 56 to make it 56 we have to multiply by 4 in the numerator as well as in the denominator. 3 4 24. ठीक है. And this is 56. यहाँ पे लिख लीजिएगा LCM of 14 and 8 is equal to 56. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ इसको भी इसी तरीके से करेंगे. 3 into 8. 8 what number is multiplied in 8 so that it become 56? 7 8s are 56. So 7 is multiplied in the numerator as well as in the denominator. 3 7s are 21 upon 7 8s are 56. Now we have 24 by 56 and 21 by 56. Which one is greater? Obviously 24 is greater. Now among 3 by 14 and 3 by 8, which one is greater? 3 by 14 is greater. ठीक है. एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है. दिस इज 3 4 12. 3 4 12. ठीक है. यहाँ पे 3 4 12 है और अगर 12 है तो ये ग्रेटर हो जाएगा. वाई? बिकॉज दिस हेयर इज 56 56 12 and 21. सो ऑब्वियसली विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर. सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा इसको. 3 by 14 और 3 by 8 इसको लाइक फ्रैक्शन में बनाया. दिस इज द वन ऑफ द मेथड. बट अगर न्यूमरेटर सेम हो, डायरेक्टली जज करने का भी एक हमारे पास मेथड है कि मैं डायरेक्टली इसको देख करके बता सकती हूँ विच वन इज ग्रेटर. हाउ? लिसन. अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर दोनों का सेम है. जब भी न्यूमरेटर सेम हो तो दूसरा मेथड क्या होता है कि हमें देखना होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जो फ्रैक्शन होगा दैट इज स्मॉलर. 3 by 14 here the denominator is larger than this one. जितना बड़ा, फॉर एग्जाम्पल देखिए दिस इज 1 by 2. 1 by 2 का आंसर क्या होगा? 0.5. ठीक है. 1 by 3 आंसर क्या होगा? 0.3. ठीक है. 0.33 जाएगा. तो आप देखिए 1 by 2 का आंसर क्या है? 0.5. 1 by 3 का आंसर क्या है? 0.33. दैट मीन्स जैसे जैसे मैं फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर को बड़ा करती जाऊंगी मुझे आंसर क्या मिलता जाएगा? और छोटा मिलता चला जाएगा. ठीक है. आप देखेंगे इसको करूंगी तो क्या आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा. दैट मीन्स कि अगर मैं 1 by 5 करूंगी और छोटा आ जाएगा. तो आप ये देख रहे हैं कि एज द डिनोमिनेटर increases the value of fraction becomes smaller and smaller. So the case is here 3 by 14 and 3 by 8. Numerator is same. Now the denominator is 14 and here the denominator is 8. Which one is larger? 14 is larger. That means this value is smaller than this. I can put directly here. But मैंने आपको directly भी समझाया है और यहाँ से भी बताया कि आप इसको like fraction
करके तो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे 12 आ गया, 12/56, यहाँ 21/56 आ गया। सो 12/56 इज लेस देन 21/56। और ये भी आप स्टूडेंट याद रखेंगे कि एज द डिनोमिनेटर बिकम ग्रेटर द फ्रैक्शन बिकम स्मॉलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और डायग्रामेटिकली भी देख लीजिए इस चीज को। जैसे मेरे पास ये एक होल है, ठीक है, मैंने बोला 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये पूरा हाफ। इफ आई सेड 1/3, 1/3 का मतलब इसके कितने हिस्से हो गए, 3। तो ऑफ कोर्स दिस पोर्शन इज लार्जर देन दिस वन। इफ आई सेड 1/4, 1/4 और छोटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलती हूँ 1/5, दैट मीन्स आई हैव टू डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स, तो ये पार्ट और छोटा हो जाएगा। As the denominator increases, the value of fraction becomes smaller and smaller. So you can put directly here 3/14 and 3/8. Since the denominator is smaller, that means the value is larger. So this becomes 3/8. Or you can do by the same process जैसा हम करते आए हैं वैसे भी कर सकते हैं। Moving towards the second part. Second part is 1/2 off. Off मतलब multiply 6/7. 2 1s are 2, 2 3s are 6. It becomes 3/7. Now this part 2/3 off 3/7, 3 से 3 कैंसिल, इट्स 2/7। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, हमारा काम बहुत इजी हो गया बिकॉज बोथ आर द लाइक फ्रैक्शन। वी नो दैट लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 3/7 and 2/7. Which one is greater? Of course this one is greater because 3 is greater than 2. Hope so this question is clear to you. Moving towards the next question.